Hello everyone, welcome back to our PIB sessions, and today we are going to study PIB for 9th to 11th of September 2025. If you are new to this channel, please like, share and comment. Join our Telegram channel for further updates. Also, you can watch more videos on our channel that relates to teaching financial affairs, current affairs, agriculture current affairs, some ministry schemes, and also current affairs and also agriculture static portion for NABARD. So yes, let's start now with studying PIB through MCQs of 9 to 11th of September 2025. Okay, so first MCQ says, Prime Minister Narendra Modi congratulated the re-election of Prime Minister Jonas Gahr Store of which country in September 2025? So re-election of Prime Minister of Norway has taken place and Norway के Prime Minister को re-elect किया गया है. So Norway Prime Minister Jonas Gahr Store has now been re-elected. So please remember he is Prime Minister of Norway. Right. Now our second MCQ is, what is the theme of 11th CPA India Region Conference? So what is CPA? CPA stands for Commonwealth Parliamentary Association. Now what has happened? 11th CPA यानी 11th Commonwealth Parliamentary Association की कॉन्फ्रेंस हुई है एंड ये इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर को एट बेंगलुरु. सो दिस कॉन्फ्रेंस जो हुई है बेंगलुरु में, दैट इज़ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु. इसकी थीम क्या है? द थीम इज डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशन. सो प्लीज रिमेंबर द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. ऑल्सो रिमेंबर कि ये एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? सो इट हैज़ हैपेंड इन बेंगलुरु. Right. Now the next question is, which ministry is responsible for Adi Sanskriti? तो Adi Sanskriti क्या है? I'll explain you in just a bit. But Adi Sanskriti is implemented by Ministry of Tribal Affairs. Now what is Adi Sanskriti? Adi Sanskriti के तीन components हैं. First is Adi विश्वविद्यालय, सेकेंड इज़ आदि संपदा एंड थर्ड इज़ आदि हार्ट्स. सो आदि विश्वविद्यालय का मतलब है कि डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी, यानी 45 कोर्सेज जो है वो भी ऑफर कर रहे हैं ट्राइबल डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक एंड फोकलोर पे. उसके बाद आदि संपदा इज़ रिपोजिटरी. यहाँ पे 5000 डॉक्यूमेंट्स है अक्रॉस पेंटिंग्स, डांसिंग, क्लोथिंग, आर्टिफैक्ट्स एंड लाइवलीहुड. देन आदि हार्ट इज़ अ मार्केट प्लेस दैट इज़ लिंक्ड विद ट्राइफिड और वो डायरेक्ट कंज्यूमर एक्सेस देता है टू ट्राइबल प्रोडक्ट्स सपोर्टिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. राइट. नाउ the aspire program aims to do what? तो the aspire program क्या है? I'll make you understand that too. But first of all, let us see what this aspire program does. So aspire program accelerated dual use technological development in defense and civilian sectors. यानी aspire program क्या करता है? Accelerate करता है dual use technological developments in defense and civilian sectors. Now IDEX-DIO signed an MOU with which CPSE under Ministry of Education. So EDCIL Limited के साथ IDEX ने MOU साइन किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नाउ IDEX यानी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड DIO मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस. इस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है विद EDCIL इंडिया लिमिटेड ऑन 9th ऑफ सितंबर ताकि डुअल यूज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को फोस्टर किया जा सके अंडर एस्पायर प्रोग्राम. और एस्पायर प्रोग्राम क्या करता है? डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी को फोस्टर करता है, यानी कि सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट. राइट. Now the next question is, National Cooperative Export Limited recently signed an MOU. So NCEL ने एक MOU साइन किया है with which organization to boost cooperative led agriculture export. So NCEL ने MOU साइन किया है with APEDA. So B is the right answer. The MOU between Coal India Limited and NSTFDC focuses on which group? So एक Coal India और NSTFDC के बीच में भी MOU साइन किया है that relates to tribal students in EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. इसको हमने हमारी स्कीम्स पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है. नाउ NSTFDC stands for नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कोल मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री के बीच का ये MOU है.
अगर दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच का MOU है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस फॉर एग्जाम दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने MOU साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से कोल इंडिया लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हमने इसे भी कवर किया व्हेन वी वर स्टडिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन डिटेल। This MOU was signed at National Tribal Institute, Delhi, in presence of Union Minister of Coals and Mines and Tribal Affairs. Right. तो आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड ट्राइबल अफेयर्स के बीच का MOU साइन हुआ है। द टाइटल वॉज एम्पावरिंग ट्राइबल स्टूडेंट्स इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल थ्रू डिजिटल एक्सेस, करियर मेंटरशिप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका सिग्निफिकेंस है इट सपोर्ट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल यूथ, इट स्ट्रेंथन्स एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एज अ हब फॉर क्वालिटी एजुकेशन, अलाइंस विद CSR गोल्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड बियॉन्ड कोल प्रोडक्शन। यानी ये दोनों के फ़ायदे की चीज़ है। सो कोल इंडिया इज़ डूइंग ताकि वो अपना CSR भी फुलफिल कर सके, अपनी गोल्स को भी फुलफिल कर सके। इट ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ट्राइबल वेलफेयर की तरफ एंड विजन ऑफ विकसित भारत। It also encourages public-private partnership for inclusive development. Now, next question is, which institution signed an MOU with IIT Delhi to boost sports साइंस इन इंडिया? तो स्पोर्ट्स साइंस को बूस्ट करने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च ने MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ। नाउ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च ने किस IIT के साथ ये साइन किया है, देन द आंसर वुड बी IIT दिल्ली। सो बोथ वेज यू शुड नो दैट IIT दिल्ली एंड नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस हैज़ साइन MOU ताकि स्पोर्ट्स साइंस को बूस्ट किया जा सके इन इंडिया। Now it will promote sports science research, focuses on indigenous sports equipment and devices. Also it supports the vision of Atmanirbhar Bharat and Garv Se Swadeshi campaign. Next question is, who recently assumed charge as director of CSIR NISCPR? NISCPR मतलब National Institute of Science, Communication and Policy Research. तो recently यहाँ की डायरेक्टर बनी है डॉक्टर गीता वानी रायसम। So B is the right answer. Now next question is on Swachh Vayu Sarvekshan Awards. Swachh Vayu Sarvekshan I'll tell you in detail. Okay, first let's read only Swachh Vayu Sarvekshan Awards and Wetland City Recognition Ceremony. उसके बाद we will come back to our MCQs. तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए गए हैं एंड वेटलैंड सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो प्लीज़ रिमेंबर ये जो वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स है दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट, नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं सिटीज़ को जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर आती हैं फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड फैसिलिटेट यानी अवॉर्ड करना चाहते हैं उन सिटीज़ को जिनको हमने एक्रेडिट किया है एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन। नाउ इफ़ यू नो रामसर कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971 जिसके तहत हम वेटलैंड सिटीज़ को डेजिग्नेट करते हैं और उनको रामसर साइट्स का टैग भी देते हैं। राइट, अब एक और हमने दिया है दैट इज़ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स दिए हैं, वो भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज कराए। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, वी आर वांटिंग टू रिकॉग्नाइज सिटीज़ जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर आती हैं फॉर एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम क्या है? नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया था 2020 में और ये 130 सिटीज़ को कवर करता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये 130 सिटीज़ को कवर करता है। 2020 में से लॉन्च किया था एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये प्रोग्राम है। नाउ ये जो अवार्ड्स हुए हैं ये इसी कैटेगरी में ये अवार्ड्स देते हैं उन सिटीज़ को जिन्होंने इस चीज़ से कंप्लाई किया है और इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हासिल की है। तो 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। फर्स्ट इज सिटीज़ विद पॉपुलेशन जिनकी 10 लाख से ऊपर है। सेकेंड इज सिटीज़ विद पॉपुलेशन विद बिटवीन 3 to 10 लाख पॉपुलेशन, और कैटेगरी 3 सिटीज़ जिनकी 3 लाख से कम है पॉपुलेशन। राइट, तो नाउ दे आर कंडक्टेड एनुअली फॉर 130 NCAP सिटीज़ ताकि हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जा सके एंड ऑल्सो फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन एयर मेजर्स टेक प्लेस। तो सबसे पहले जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो उसमें फर्स्ट रैंक आई है इंदौर की विद स्कोर 200 on 200, यानी फुल स्कोर के साथ इंदौर ने टॉप किया है
इंदौर ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे? इंदौर प्लांटेड 16 लाख ट्रीज, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। 120 ई बसेस चलाई हैं, 150 CNG बसेस चलाई हैं, और इसी वजह से इंदौर के इनिशिएटिव के वजह से इंदौर को रैंक फर्स्ट मिला है विथ फुल स्कोर, एंड कैश प्राइस मिला है ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज़। Please remember, Indore first prize 200 out of 200 score and cash prize of 1.5 crore rupees. Second city is Jabalpur with 199 on 200 score. Again another city from Madhya Pradesh, and यहाँ पर 11 megawatt waste to energy plants and urban greenery की गई है. Cash prize is 1 crore rupees. Third prize गोज़ टू आगरा एंड सूरत, दोनों को थर्ड प्राइज़ मिला है विथ सेम स्कोर, एंड आगरा एंड सूरत को 25 लाख रुपीज़ ईच मिलेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर, फर्स्ट इज़ इंदौर, देन जबलपुर, एंड देन आगरा एंड सूरत. नाउ सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे पॉपुलेशन 3 to 10 लाख रखी गई है पॉपुलेशन, वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिला है अमरावती को. फुल स्कोर अमरावती को 75 लाख रुपीज़ का कैश प्राइस मिला है, एंड की इनिशिएटिव्स थे 340 किलोमीटर पेवमेंट बनाना, ग्रीनिंग 53 गार्डन्स, फॉरेस्ट क्रिएशन एक्सेट्रा. सेकेंड प्राइज़ झांसी 25 लाख रुपीज़ का अवार्ड. देन सेकेंड प्राइज़ ऑल्सो गॉट टू मुरादाबाद, तो 25 लाख रुपीज़ का प्राइज़. उसके बाद थर्ड अवार्ड मिला है अलवर को, अगेन 25 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़. थर्ड कैटेगरी में फर्स्ट मिला है देवास को, बट स्कोर फुल नहीं है. सो प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर स्कोर जो है वो फुल है, 200 on 200, ऑल्सो 200 on 200, बट यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में स्कोर जो है वो 193 है, 200 नहीं है. यहाँ पर कैश प्राइस मिला है 37.5 लाख रुपीज़ का. सेकेंड इज़ परवानू एंड थर्ड इज़ अंकुल. सो प्लीज़ रिमेंबर एटलीस्ट टॉप 3 सिटीज़. नाउ अगर हम वेटलैंड सिटी रिकग्निशन की बात करें तो यहाँ पर इंदौर एंड उदयपुर को वेटलैंड सिटीज़ की तरह रिकॉग्नाइज़ किया गया है. इट वाज डन लास्ट ईयर, तो यहाँ पर उनको एक्रेडिट किया गया है कि आपने जो रिकॉग्नाइज़ किया है वेटलैंड सिटीज़ के तौर पर, उनके एग्जाम्पलरी एफर्ट्स के लिए इन कंजर्विंग अर्बन वेटलैंड्स. नाउ अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, वेटलैंड सिटीज़ अलग होती हैं, रामसर साइट्स अलग होती हैं. प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. अभी हमारे पास सिर्फ 2 वेटलैंड सिटीज़ हैं, दैट इज़ इंदौर एंड उदयपुर. भोपाल वॉज ऑल्सो सेंट एज अ रिकमेंडेशन बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. तो अभी इंदौर एंड उदयपुर हमारे पास सिर्फ 2 वेटलैंड सिटीज़ हैं. बट अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो 91 रामसर साइट्स है, कवरिंग 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स, हाइएस्ट इन एशिया एंड थर्ड ग्लोबली. यानी कि हमारी रामसर साइट्स थर्ड हैं ग्लोबली, एंड ऑल्सो वी आर फर्स्ट इन एशिया. सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स हेल्प्स इन फ्लड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कल्चरल आइडेंटिटी, लाइवलीहुड फॉर फिशरमैन्स, नेचुरल पॉल्यूशन फिल्टर्स. राइट, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर MCQs. तो हमारे MCQs में पूछा गया था अंडर विच प्रोग्राम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स हुए हैं, तो दे हैव बीन कंडक्टेड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. सो B इज़ द राइट आंसर. एंड विच सिटी टॉप्ड कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 टॉप किया है इंदौर ने विथ 200 on 200 स्कोर एंड कैश प्राइज ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज़. राइट, नाउ लेट्स गो बैक टू अनदर न्यूज़. And the next question is, what is the target or number of saplings to be planted under एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ड्यूरिंग सेवा पर्व जो सितंबर से अक्टूबर चलेगा. तो हमें कितने सैपलिंग्स प्लांट करने हैं अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंदर. सो वहाँ पर हमें 75 करोड़ हमारा एम है कि हमें सैपलिंग्स प्लांट करने हैं बिटवीन 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर 2025. नाउ, which organization signed an MOU with Punjab National Bank in September 2025 and what is the primary objective of that MOU? तो MOU साइन किया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ. सो पंजाब नेशनल बैंक ने TCIL के साथ MOU साइन किया है. एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस MOU? इस MOU का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, सो प्लीज़ रिमेंबर TCIL एंड पंजाब नेशनल बैंक ने MOU साइन किया है फॉर स्ट्रेंथनिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर. सो B and B is the right answer. Now what is Samudra Pradakshina? So what is Samudra Pradakshina? Samudra Pradakshina is India's first tri-service all-women circumnavigation sailing expedition. सो प्लीज़ रिमेंबर, समुद्र प्रदक्षिणा जो है वो इंडिया का पहला ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन है. देन
What is the loan amount signed by Government of India and Asian Development Bank for sustainable tourism in उत्तराखंड? तो क्योंकि उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक MOU साइन किया है. वो कितना लोन अमाउंट है जो उसका साइन किया है? दैट इज़ $126.42 million US. Then next question is, India has already achieved dash of its 2030 target of 500 gigawatt of non-fossil capacity. यानी इंडिया का 2030 का टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है वो अचीव करनी है ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी, यानी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो सब हमें बनानी है, फॉसिल नहीं होनी चाहिए. तो हमने अभी हाफ टारगेट पूरा कर लिया है, 1/2 टारगेट पूरा कर लिया है. एंड बाय विच ईयर डज इंडिया एम्स टू अचीव फुली इंडिजीनियस सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग वेफर्स एंड इनगॉट्स? तो इंडिया का एम है कि वो 2028 तक फुली इंडिजीनियस सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करने लगे. So let us see some major announcements and achievements that have taken place. तो first is Swadeshi Solar value chain by 2028. तो हमारा goal है to achieve complete domestic solar manufacturing ecosystem by 2028. Right. अभी इंडिया का जो टारगेट है ऑफ अचीविंग नॉन फॉसिल कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट, तो वो हमने 50% अचीव कर लिया है. सो 251.5 गीगावाट की एनर्जी क्रॉस कर दी है एंड इंस्टॉल कैपेसिटी 50% से ज़्यादा हो गई है ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी. विजन क्या है ऑफ ग्रीन एनर्जी फ्यूचर? तो 1800 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी करनी है बाय 2047 एंड 500 गीगावाट बाय 2070. सो प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर आवर विजन्स, एम्स, टारगेट्स, ये पूछा जा सकता है. फोकस ऑन टाइमली एग्जीक्यूशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनोवेशन ड्रिवन एनर्जी ट्रांजिशन. Right. So thank you so much for watching. This is the last MCQ and I hope you got it. Please keep watching. If you did like the session, please like, share and comment. Also tell me what you want next me to cover. Also please join our Telegram channel and I'll meet you all again in next PIB sessions. Thank you for watching. Also I'll be compiling these PIB sessions of different months, so stay tuned to that PDF. Also I'll upload it in my Telegram channel. So for now I am compiling July PIB sessions, then I'll also compile August PIB sessions and also June PIB sessions, because I know these are very important for exams. So I'll compile and I'll share the combined PDF for you all to study. So thank you so much.